ایک ہاتھ کس کا؟ ایک، دونوں ہاتھوں پہ لہرائیں، دونوں کو لہراتے جائیں اور تالیاں اسی کے لیے دیں۔ میں دل اور دل کی گہرائیوں سے دیکھتی آنکھوں کو اور سننے کانوں کو ریورنڈ پاسٹر ریاض مکھن کی طرف سے آپ سب کو سلام، اور میں ایمان تک آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آج صبح کی دعا کرتا ہوں میں آپ لوگوں کے لیے کہ خدا آپ لوگوں کو بچا کر رکھے۔ ہاللیلویا۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں، جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ ملک پاکستان کے لیے ہمیں دعا کرنے کی سخت ضرورت ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سیلاب کے اندر مر رہے ہیں اور تباہ ہو رہے ہیں، بیمار ہو رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، انسان مر رہے ہیں اور بچے مر رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بچ تو گئے ہیں لیکن کھلے آسمان کے نیچے ہیں۔ کہاں پر ہے؟ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، لیکن خدا ان کی حفاظت کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ کلام میں لکھا ہے خدا ان سب کے قریب ہے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ کیسے دعا کرتے ہیں؟ جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ تو آج کا جو مضمون ہے وہ ہے ایمان۔ کیا ہے؟ میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند نے پھر اپنے بندہ کو موقع دیا کہ وہ مثبت کھڑا ہو کر خداوند یسوع مسیح کی گواہی دے سکے۔ ہاللیلویا۔ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ کتنے عرصے کے بعد آج میں پلپٹ پر کھڑا ہوں، اس میں خدا کی مرضی ہے۔ سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ خدا نے مجھے مشکلوں میں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں میں سے نکالا اور اپنی خدمت کے لیے تیار کیا۔ ہاللیلویا۔ ایک بار یسوع کے لیے نعرہ لگائیں گے، ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ بے شک آج صبح ہم تھوڑے ہیں، لیکن تھوڑے نہیں، خدا یسوع مسیح کا وعدہ ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے۔ ہاللیلویا۔ ہم کتنے ہیں؟ 2-3 سے زیادہ۔ تو میرے عزیزوں، اس کا مطلب ہے کہ خدا یہاں پر موجود ہے، خدا یہاں پر موجود ہے۔ تو آج ہم سیکھیں گے، سنیں گے اور سمجھیں گے۔ ہاللیلویا۔ آئے میرے ساتھ نکالیں نیا عہد نامہ، اب باتیں بند کریں، خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہوں اور سیکھیں کہ یسوع کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ مرکز کی انجیل اور اس کا 16 باب، نیا عہد نامہ مرکز کی انجیل اس کا 16 باب اور اس کی 14 آیت۔ کلام کو سنیں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے اور اس کو عمل کریں گے۔ ہاللیلویا۔ میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، تو جو کریں اب باتیں بند کریں، ادھر ادھر دیکھنا بند کریں، یہاں پر خدا کی حضوری ہے۔ ہاللیلویا۔ کتنے لوگ خدا کے کلام کو قبول کرتے ہیں اور سننے کے لیے تیار ہیں؟ سبھی تیار ہیں؟ ٹھیک ہے، خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے دعا ہے، مرکز کی انجیل 16 باب اور اس کی 14 آیت۔ خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے، پھر وہ ان 11 کو جب کھانا کھانے بیٹھے تو دکھائی دیا اور ان کی بے اعتقادی اور سخت دلی پر ان کو ملامت کی، کیونکہ جنہوں نے اس کے جی اٹھنے کے بعد اسے دیکھا انہوں نے ان کا یقین نہ کیا۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزوں، آج ہم اس بات پر غور کریں گے اور ہم خدا کے کلام کو سیکھیں گے کہ جب خدا یسوع المسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور موت اور قبر پر فتح پا کر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور وہ اپنے شاگردوں کے پاس گیا، شاگرد خوف کر، ڈر کر چھپے ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے استاد کو نہیں چھوڑا تو ہمیں کیسے چھوڑیں؟ ہاللیلویا۔ اور
बात से हैरान आपस में बातें कर रहे, सोच रहे हैं कि हम क्या करें, और खुदावन का जलाल खुदा यीशु मसीह यहाँ पर आप खड़े हुए हैं। हालेलुया। और उसने उनसे कहा कि तुम्हारी सलामती हो, तुम्हारी, और वो नहायत डर गए। तुमा रसूल ने कहा ये कोई रूह है, क्या है? यीशु ने कहा मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं। और उन्होंने उनका यकीन ना किया, उन्होंने उसका यकीन ना किया। जब 11 शागिर्द बैठकर आपस में खाना खा रहे तो खुदा यीशु मसीह जब वहां पर आ खड़े हुए और उस बात से देखकर हैरान हुए, और उन्होंने उनका यकीन ना किया, क्योंकि लिखा है जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा उन्होंने उनका यकीन ना किया। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि हमें क्या मालूम क्या खुदा यीशु मसीह झूठा या नहीं झूठा, लेकिन मेरे अजीजों खुदा यीशु मसीह मौत और कब्र को फतेह पाकर मुद्दों में से झूठा। हालेलुया। और उसने उनसे कहा, ये बड़ी समझने वाली बात है कि जिन्होंने उसके झूठने के बाद उसे देखा उन्होंने यकीन ना किया, क्योंकि उनकी बेतकादी यानी अतकार, उनका यकीन, उनका भरोसा, उनका ईमान मजबूत ना था, यकीन ना किया। वो कहने लगे ये कोई रूह है। यीशु ने उनसे कहा कि रूह की गोश्त और हड्डी नहीं होती, रूह की गोश्त और हड्डी नहीं होती। मुझे छू कर देखो, मुझे छू कर देखो और मेरे हाथ पैर देखो। जब उन्होंने हाथ और पांव दिखाए और उसमें सुराख था, क्या था? हाथों और पांव में सुराख था, क्योंकि कील ठोके गए। यीशु मसीह के हाथों और पांव में कील ठोके गए और सर के ऊपर कांटों का ताज और पसली में नेजा मारा। हालेलुया। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करें। फिर तुमा रसूल ने उनका यकीन ना किया। यीशु ने अपने हाथ दिखाए, उन्होंने यकीन ना किया। उन्होंने कहा कि हमारे उस्ताद की पसली के अंदर नेजा मारा। हालेलुया। यीशु अल मसीह ने अपनी पसली दिखाई। फिर यकीन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? फिर भी उन्होंने उनका यकीन, यानी बेतकार यकीन नहीं आ रहा, शक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शक कर रहे हैं। और सख्त दिली का मतलब है उनके दिल सख्त हो चुके, उनके दिल सख्त हो चुके, यकीन नहीं कर रहे। यीशु ने कहा मेरे हाथ और पांव छू कर मुझे अटैच कर, लेकिन उन्होंने उनका यकीन ना किया। तुमा रसूल ने खुदावन यीशु अल मसीह की पसलियों के अंदर उंगली डाली। हालेलुया। पसलियों के अंदर उंगली डाली और खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि तूने तो हमारी आजमाइश की है, तूने हमारी आजमाइश की है, मगर मुबारक वो लोग हैं जो बगैर देखने पर ईमान लाए। हालेलुया। मुबारक कौन है? वो है जो बगैर देखने पर ईमान लाएंगे। तो हम खुश नसीब लोग हैं। हम क्या है? खुश नसीब लोग हैं कि हम खुदा पर ईमान रखते हैं। हालेलुया। सब कहें हालेलुया। किस पर ईमान रखते हैं? यीशु अल मसीह मुर्दों में से जी उठा। मुबारक है वो जो बगैर देखने पर ईमान लाएंगे। तो मेरे अजीजों, हम खुश नसीब लोग हैं। हम कहते खुदा है। खुदा क्या है? यहाँ पर मौजूद है, हम महसूस करते हैं। हालेलुया। और उसने उनसे कहा तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो। किसने कहा? खुदा यीशु मसीह ने कहा तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो, जो ईमान लाए और वो बपतिस्मा ले।
जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाए। हालेलुया। तो कलाम में लिखा है कि जिसके कान है वो सुने कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता। जिसके कान है वो सुने कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। और बड़ी सीखने वाली बात यह है, उसने कहा तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजीर की मुनादी करो। तो मेरे अजीजों, अंजीर का लफ्ज़ से मतलब है खुशखबरी। क्या है? जब खुदा इस मसीह मुर्दों में से जी उठा तो क्या ये काम खुशी है? खुशी, बहुत बड़ी खुशी और ज्यादा खुशी है। खुशी हमें महसूस करनी चाहिए, खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। हम किसकी गवाही देंगे? खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा पर ईमान रखो, मुर्दों पर नहीं। तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजीर की मुनादी करो और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। जो ईमान ना लाए मुजरिम ठहराया जाएगा। जो ईमान ना लाए वो क्या होगा? मुजरिम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोज़े होंगे कि तुम मेरे नाम से बदलुओं को निकालो। हालेलुया। मेरे नाम से, मेरे अजीजों, आप लोगों का ईमान है, आप ईमान रखें, आपके साथ खुदा बात करेगा, आपके साथ खुदा हम कलाम होगा और आपको खुदा ब्लेसिंग देगा। आप बदलुओं को निकाल सकते हैं, बशर्ते रोज़ा और दुआ के बगैर कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको एक मिसाल देता, अगर पानी की बोतल भरी होगी और उसे और भरेंगे तो क्या होगा जी? गिरेगा। पानी गिरता जाएगा और जहाँ जहाँ पानी जाएगा, जिन फसलों को लगा वो हरी भरी होती जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि हमने भरे को भरना है। आगे पानी का एक टप बाल्टी वगैरह भर ली है, उसे और भरेंगे तो बरकत पर बरकत आएगी। हालेलुया। और मेरे अजीजों, अपने आप को भर के रखे। कुरान कहता है, ये बड़ी समझने वाली बात है कि मेरे नाम से बदबुओं को निकालेंगे और नई नई ज़बानें बोलेंगे। और क्या होगा जी? नई नई ज़बानें बोलो, यानी आप लोग गैर ज़बान बोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जब खुदा आपको ब्लेसिंग देगा, आप रूह कुद्दस में होंगे, रूह कुद्दस आपको अटैच करेगा और आप गैर ज़बानें बोलने लगेंगे। ये कलाम कहता है। लेकिन हमें जागने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? कलाम कहता है जागते रहो। क्या करते रहो? जागते रहो। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना हो। जागो और ताकि आजमाइश में ना पड़ो। कलाम कहता है कि जागते रहो और दुआ करते रहो। हमें दुआ करने की सख्त जरूरत है। हमें दुआ पर दुआ करने की जरूरत है। ये बड़ी समझने वाली बात और सीखने वाली बात है मेरे अजीजों। कलाम कहता है अगर तुम्हें कोई जहर पिलाए, जहर भी पिला दे तो उसका असर ना हो। हालेलुया। कलाम कहता है जो दुआ ईमान के साथ हो उसके पास बीमार बच जाएगा। नई नई ज़बानें बोलोगे और सांपों को उठा लेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे जी? सांपों को उठा लेंगे। अगर कोई हलाल करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जर ना होगा, उन्हें कुछ जर ना पहुंचे। अगर इब्लीस आपको गिरा देता है, इब्लीस आपको मुश्किल में डाल देता है, इब्लीस आपको बीमारियों में डाल देता है, इब्लीस आपको जकड़ लेता है, हम नाउम्मीद हो जाते हैं, हम टूट जाते हैं, हम फिक्र करने लग पड़ते हैं, हम क्या करेंगे, कैसे बचेंगे। याद रखो इब्लीस हमें गिराता है और मेरा यीशु उठा करता है। हालेलुया। यीशु के लिए जोरदार कहें। कलाम कहता है नई नई ज़बानें बोलो। गैर ज़बान, गैर ज़बान रूह कुद्दस की दी हुई ब्लेसिंग है। हालेलुया। गैर ज़बान बोलने से बंधन जुए टूट जाते हैं, हर जंजीरें टूट जाती है, मुश्किलात खत्म हो जाती है। जैसे पलूस और सिलास काट में है फिर भी दुआ कर रहे हैं। आधी रात का वक्त है। कितनी रात का वक्त है? आधी रात का वक्त है और सो नहीं रहे बल्कि जाग रहे हैं और दुआ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और हमद के गीत गा रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पर हमें सीखने को मिलता है
सांपों को उठा लेंगे, अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जर ना पहुंचेगा, और वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार अच्छे हो जाएंगे। हालेलुया, जोर से हालेलुया। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो भी अच्छे हो जाएंगे। राम कहता है बस तुम एक दूसरे के लिए दुआ करो, एक दूसरे के लिए। जो दुआ ईमान के साथ हो उसके बायस बीमार बच जाएगा, क्योंकि कलाम में लिखा है, पुराना आयत नंबर ज़बूर 145 और उसके 18वीं आयत के अंदर मौजूद है, खुदावन उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते। खुदा उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। कैसे दुआ करते हैं? तो मेरे अजीजों, बंधन जुए तब टूटते हैं जब हम रूह और सच्चाई से दुआ करते हैं। और मुकद्दस मत्ती की अंजील और उसका 26 बाब 48 आयत में खुदा यीशु मसीह कहता है, जागो और दुआ करो, जागो और ताकि आजमाइश में ना पड़ो। हमें आजमाइश में से निकलना है, हमें दुआ करने की जरूरत है, हमें रोजा रखने की जरूरत है। हालेलुया। आप इस बात की फिक्र न करें, खुदा यीशु मसीह मौजूद है। खुदा यीशु मसीह हमें गुनाहों की दलदल से, मुसीबतों से, अबलीस के शिकंजे से निकालने की कुदरत है। हालेलुया। तो बात यह है कि कलाम कहता है कि जिन्होंने उसके झूठने के बाद उन्होंने उनका यकीन ना किया। मेरे अजीजों, हमें यकीन करने की जरूरत है, रखने की जरूरत है, ईमान को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि यीशु के बगैर हम कुछ नहीं है। कलाम कहता है कि उससे जुदा कर कुछ नहीं कर सकते। गैर मुद्दों के पीछे दौड़ने वाले का गम हट जाएगा और खुदा अपने वजन पर उन्हें गम पर गम देगा। और दूसरी बात यह है कि हमें अपने अपने गुनाहों से तौबा करने की जरूरत है, अपने अपने गुनाहों का इकरार करने की जरूरत है, तौबा करने की जरूरत है, और खुदा यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेने की जरूरत है। हालेलुया। तो जिन्होंने आज तक बपतिस्मा नहीं लिया वो अपने आप को तैयार करें, तौबा करें, इकरार करें, अपनी गलतियों से माफी मांगे और खुदा यीशु मसीह के पास जाए और अपने गुनाहों का इकरार करके यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले और वो निजात। लिखा है जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा, जो ईमान ना लाए मुजरिम ठहराया जाएगा। ईमान लाने वालों के दरमियान मौज से होंगे, ईमान लाने वालों के दरमियान क्या होंगे? मौज से होंगे। तो मेरे अजीजों, मौज से तब होंगे जब हम रूह और सच्चाई के साथ खुदा से मेल मिलाप, खुदा से मेल मिलाप रखेंगे और खुदा से हमारे घर के अंदर आएगा और हमें रात को उठाकर हमें दुआ के लिए दावत देगा। हालेलुया। तो हमें दुआ पर दुआ करने की जरूरत है। मैं ईमान रखता हूँ आप लोगों ने आज के कलाम से सीखा है कि जो कोई ईमान लाए वो निजात। हालेलुया। सो खुदा का कलाम पढ़े और सुने जान को खुदा की खास कर सब कहे आमीन।